Very good morning, all of you. We'll start today's session. Can you hear me? Yes, sir. Okay, great. So now we will start the today's chapter. The first chapter is a VI editor. In that editor, we can perform some operations or we can perform some configuration file related work. So it's very easy. First of all, we will learn some basic theoretical part. After that, we will perform a practical. Okay. So our chapter name is VI editor. Either we can say that VIM or VI editor. Okay, by using both way we can we can work on that command. Either we can use VI or VIM. But if you want to use VIM instead of VI, then we need to install VIM package into system. Okay, it is a mandatory. So what is the VI or VIM editor? We will see how we will install. The VI editor is the most popular and classic text editor in the Linux family. So what is a VI editor? VI editor is used for configuration file to configure the configuration file. How we will configure? Because it is a text editor. By using that we can easily configure our configuration file. For example, in the partition we need to mount our partition permanently, then we need to change the configuration file. Where is the configuration file? Slash etc slash fstab. That file can be opened by using vi, so we can edit them, and after that we can make a changes. After that we can save and reboot the system. The particular mount will be particular file will be mounted. Okay, so what is a vi is a text editor. So for that, if you want to use a text editor, we need to perform some certain operation like copy, move, cut, paste, like that. Okay, second, vim or vi command line mode. In this mode you can move the cursor. ओके, आप कर्सर मूव कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं द टेक्स्ट. दिस मोड आल्सो सेव द चेंजेस यू हैव मेड द फाइल. उस फाइल के अंदर बाय यूजिंग दिस एडिटर आपने कुछ भी चेंजेस किए हैं, दैट विल बी सेव. ओके, after the third we have the option vim editor insert mode. Right now when we use vi editor, okay, so we need to use vi, or either we can use vim command, or either we can use vi. After that, name of file. If the file is present, then file will be open in edit mode. If file is not present, then the particular file will be created. Note that the vim or vi editor is only used for the file, because it is a text editor and text editor are used for only files. We cannot able to vi editor in to modify or perform operation on the directory. It is the most important point. So what is the insert mode? See, the file, if we have a file and that file is open, then the file will be open in the form of in the mode of editor mode. If you don't have a file and I'm trying to open that file, I don't have a file but I'm trying to open that file, the new file we will be created. अब फाइल जैसे भी क्रिएट होती है, then we need to modify the changes. We need to cut, copy, paste, or we need to enter some text, we need to add some text. So we need to perform some operations. For that, insert mode is required. For that, insert mode is a required. Okay, how will enter into insert mode? Directly हम open करने के बाद में कुछ editing कर सकते हैं क्या? The answer is no. अब जैसे भी फाइल ओपन होता है तो हम डायरेक्टली एडिटिंग नहीं कर सकते. फॉर दैट एडिटिंग आपको क्या करना पड़ता है? वी नीड टू एंटर इनटू इंसर्ट मोड. कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? बाय यूजिंग आई. We need to press I. So when we press I button on keyboard, then insert mode will be activated. This mode is for inserting text in the file.
ये मोड कौन सा होता है? टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए होता है. So let's do one by one practical, so easily we can do the observation, and after that I will add some um, snapshot also. Yeah. So first of all, what is VI or VIM? See, VIM, VI improved programmer's text editor. So what is a VIA? VIA is VIM or VI is a text editor. Okay, किसी ने पूछा what is a VIM or what is a VI? So you can say that text editor. Now here I want to ls कर दो, ये check करो. We have a number of files. So now here I will create one file by using V. I am trying to create a file. Okay, I don't have that file having name pes demo vim demo. I don't have that file. Okay, so if you don't have a file, then vim will create a new file. But first time whenever we use a vim, we need to install a package. It will generate one error. See, here the program VIR cannot found the following packages. These are the packages required for the VIM. To use the VIM, we need to install that VIM. Okay, by using high level package. So how we will install? Here we'll get the command sudo apt install and selected package. Okay. So when we install that package by using high level, we already seen high level packages and low level packages. If you want to use the low level packages, then we need to use dpkg. The particular package will be installed, but these are the different packages of the vim. Okay, so we need to install by using high level. How will install? Sudo apt hyphen get install vim. Yes, it took some time to install. Now the depending package is also installed. Now done. We'll check. Now here vim, previous command vim demo. It is in the name of file. It is a text file. And so this tilde sign is indicates it is an unused space. Okay, this tilde file is indicates when we try to enter into something. Here I'm entering ftr. I'm not able to edit the text file. Why? Because I am not in insert mode. We are not in the insert mode. Enter into insert mode, we need to press I. We need to press I. See, here at the bottom we have a insert mode. Now I can able to edit this. Okay, like hi, hello. Main purpose of the text editor to configure the configuration files. यहाँ मैं अब text ऐड कर रहा हूँ, but the main purpose of this editor is to configure the configuration file. So in the partition chapter and in the swappiness chapter, we will discuss how we will configure the files in that chapter. Hi, hello, how are you? Okay. Now ये insert mode होता है. Okay. Second important point, you can switch the insert mode from the command prompt by pressing the I on the keyboard. Okay, once you are in the insert mode, any key would be taken as an input for the file which are current working. Okay, and after that, to return the command mode and save the changes you have to made, need to press the escape button. नाउ अब इंसर्ट मोड में है. अब यहाँ से बाहर जाने के लिए वी नीड टू प्रेस एंटर, एक एस्केप बटन. सी, एस्केप बटन जैसे भी प्रेस करते हो तो यहाँ से इंसर्ट मोड आपका चले गया है. ओके,
यहाँ से insert mode remove हो गया है. That means when we press any alphabet from keyboard at that time it will not take as a input. ये input बोल के आपका नहीं लेगा. Insert mode में ही आप edit कर सकते हैं, otherwise we cannot able to edit in other mode. Now we need to save the changes. Okay, for that we need to use shift कोलन. अब ये बॉटम में देखना है आपको. ओके, ये बॉटम में शिफ्ट कोलन क्विट करने से ये विदाउट सेविंग क्विट हो जाएगा. ओके, ओनली डब्ल्यू करने से ये सेव हो जाएगा और फाइल आपकी पर्टिकुलर ओपन ही रहेगी. ओके, सेकेंड, राइट क्विट करने से ये पर्टिकुलर फाइल राइट भी करेगा और क्विट भी करेगा. एंड आफ्टर दैट राइट क्विट एक्समिलिटी मार्क देने से ये फोर्सफुली फाइल को क्विट करेगा, राइट करेगा फाइल को और फोर्सफुली क्विट करेगा. ये तीन ऑप्शन है आपके पास. फर्स्ट वन इज क्विट ओनली, आफ्टर दैट राइट क्विट, उसके बाद में राइट क्विट फोर्सफुली, और आल्सो वी हैव क्विट फोर्सफुली. फोर्सफुली के लिए आपको क्या करना है, जस्ट वी नीड टू यूज एक्सक्लेमेटरी मार्क. सो हियर आई विल यूज राइट क्विट, एंटर, my file is saved. Cat check करो, और I can also use cat command to view the content of that file. See, all the data will be saved. जो भी आपका डेटा है वो सेव हो गया है. So simply we can say that if you want to perform any operation, if you want to accept the input from keyboard, we need to press insert button. And if you want to exit from the insert button, insert mode, then we need to use escape button. After that, if you want to save the data, then we need to use right colon colon right quit colon right colon quit colon right quit right quit exclamation mark. These things we need to use. Okay, like क्विट कर सकते हैं, राइट क्विट कर सकते हैं, एस्केप बटन प्रेस करने के बाद में राइट क्विट एक्सप्लेनेटरी मार्क कर सकते हैं, या वी कैन से दैट ओनली क्विट एक्सप्लेनेटरी मार्क कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यू. ओके, इफ यू वांट टू सेव दैट फाइल, जस्ट ओनली राइट भी कर सकते हैं. So we can perform this type of operation. Okay, so hope you will understand. After that, the next, how we will use the VI editor. We already learn either we can use VI or VIM, both we can use. Okay, for VIM it is a mandatory to install a package. For EBI there is no need to install a package. VIM demo, see, all the information will be visible. Okay, now again VI demo. After that we can insert into insert mode. Hello, we can add vi. Now we need to exit from that insert mode. We need to insert we need to press escape button. After that colon right quit. We can read again cat vim demo. Now see, at the last line here we have option hello vi. Is it okay? Now we can perform some operations. We have a list of operation in the bottom of that. So we have few operations that we required repeatedly. That's why I'm focusing on the few operations only. First one is I, which is already learned. Insert at the cursor. Okay, particular file को edit करने के लिए we need to enter I. Escape button to terminate the insert button. U, undo last changes. DD, delete lines. 3DD, delete 3 lines. 4DD, delete 4 lines. 10DD, delete 10 lines. 100DD, delete 100 lines, depending on only DD. When we press the DD, the delete the current line only. और उसके आगे अगर न्यूमेरिक ऐड करते हैं, that file will be deleted. Okay, YY is used for the copy the file. Similarly, 3YY copy the 3 lines. If you want to copy 2 lines, then we will use 2YY. Okay, P is used for the paste.
Write quit is used for the wq is used for write quit. Even we can use write also. Okay, here we can use write also, right? And q is used for quit. Okay, so we can use this command, so we can perform one by one and perform operation one by one. That first of all we can enter into by using vi command, vim demo. Now I want to delete this. Here I'm using dd command. Okay, note that do not press I button, that means insert button, to perform copy delete paste operation. Okay, ये delete और copy operation करना है, at that time do not press I button. When we press the I button, आप insert mode में जाते हो. Insert mode में ये operations perform नहीं होते. Okay, first of all here I am pressing a DD. See, I will be deleted. Again I will press one time DD. That means DD only. Hello will be deleted. Now I will press 3DD. First how will be deleted, empty space will be also deleted and R will be deleted. 3DD. Again I will press 3DD, whole file will be deleted. 3DD. Okay. Now here I will use insert mode. Hi, hello, how. Okay, that's it. I will use escape button. Now cursor, here I will use YY, and at the bottom of how I will press P. Again I will press P. Okay, now I will copy three lines, 3YY. At the bottom of high, here I will use to paste this data, so I will use only P. Three lines are copied. Okay, here I will use only two lines, 2YY. At the bottom of how, press P, only hi and hello will be copied. Hi and hello will be copied. Undo करना है, press U. फिर से undo करना है, press U, press U, press U. Undo changes कर सकता है. Okay, so these are the operations we can perform. So एक configure करने के लिए, एक file configure करने के लिए इतना sufficient होता है. This is the overall about VI editor. In that editor we can enter into editor by using file VI command. After that file name, if you have a file, then file will be open in the write mode. If you don't have the file, then file will be created, and after that that file will be open in the edit mode. If you want to exit from the, if you want to enter into insert mode, then press I, perform some operation. If you want to terminate the insert mode, then we will use escape button. If you want to delete the file, then we will use dd command. And if you want to delete 10 lines, 5 lines, 7 lines, according to your requirement, that just we need to add the numeric in front of dd command. 3dd, 4dd, 5dd, 5 6dd, like that stuff. If you want to copy the file, then we need to use yy command. And paste file करने के लिए we need to use p command. Save करने के लिए w command. Quit करने के लिए q. And save and quit करने के लिए write quit. And forcefully करने के लिए write quit exclamatory mark. Okay, so here I will write quit forcefully. Now we'll read that file, cat vim demo. See, all the data will be saved. This is the overall about vim editor or vi editor. Note that when we use first time vim, we need to install that package sudo apt-get install vim. I already installed, so there is no need to install that package. But when we perform a practice of vim at the first time on your computer, Linux system, terminal, then we need to install this
package. It is a mandatory, and we already know that apt get is a high level package. Okay, when we're trying to install vim by using dpkg is a low level package, then the particular package will be installed. No dependencies of that vim will be able to install by using low level package. So it is a mandatory to use high level package, because when we install high level package, all the dependencies of that package will install automatically. There is no need to install yourself. Is it okay? Now we'll conduct some question answer session. आपको कुछ क्यूरी है तो आप पूछिए. After that we will start new chapter as a cron tab, future scheduling jobs. किसी को क्वेश्चन है? No. इजी है? Yes, sir. हम्म. I didn't get your question. प्रतीक. मुझे इस वाला फाइल होता है का What? Sir, फाइल्स डॉट टीएक्स पोस्ट. हाँ, टेक्स्ट फाइल. Yes, yes, yes. करता है तो काही प्रॉब्लेम नाही. Text file means it is a, for example, .php is a file. So we can edit that PHP file. Configuration file, whatever it may be, all the files will be configured by using VI editor. And it is a mandatory to use a file. इतना ही है. Whether it is a PHP, whether it is a HTML, file name .html, index.html, index.php, any other type of file. But it is a mandatory to use a file. एक्सटेंशन मैटर नहीं करता है, बट वो फाइल होना चाहिए. वी कैन इजीली एडिट एंड कॉन्फ़िगर दैट फाइल बाय यूजिंग VI एडिटर. ओके सर. या एनीथिंग एल्स? इट्स वेरी इजी चैप्टर, VI एडिटर. sir, हम्म. याचा टेक्स्ट फक्त एडिट करता येईल का? वगैरे नाही करता येणार दुसऱ्या फाईल मध्ये? मूव पण करता येतं, काही प्रॉब्लेम नाही याच्यामध्ये. मूव पण करता येतं. मूव करणं म्हणजे काय असतं, फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट लाईन आहे, आय वॉन्ट टू मूव दॅट फर्स्ट लाईन ॲट द एंड ऑफ दॅट टेक्स्ट एडिटर, or at the end of line. So we can easily move that. But see, basic operations मध्ये मला एवढंच वाटलं, because these are the very basic operation to configure a file. And for example, I want to add some line, I want to copy some lines, and undo basic changes. So that's why ये बताया है मैंने आपको. We can easily move. I will provide that command also. But Okay. simply this VI editor or text editor is used to configure the file. See, at the fresher level, fresher जो level होता है, at that time, most of time the जो freshers होते हैं वो VI और VIM editor ही use करते हैं. After expertise, they are using a nano editor. Nano editor is also lightweight editor. यूज करते हैं, बट द बोथ टास्क आर द सेम. ओके, उसके अंदर भी वैसा ही होता है, बट उसके अंदर आपको ऑप्शंस दिखाई देते हैं. बाय यूजिंग दैट ऑप्शन वी कैन इजीली कॉपी. VI एडिटर के अंदर ऐसे ऑप्शन नहीं दिखाई देते. आपको याद रखना पड़ता है कि वाई वाई मतलब कॉपी होता है, डी मतलब डिलीट होता है, पी मतलब पेस्ट होता है, राइट क्विट होता है. सो वी नीड टू रिमेंबर दैट, रिमेंबर दिस थिंग्स. सो फॉर दैट VI एडिटर इज क्वाइट इजी. ऐसा करना पड़ता है. ओके. हेलो सर. Yes, sir.
सर आपण जर एडिटिंग कमांड्स रॉंग यूज केले तर डाटा रिमूव्ह होऊन जाईल का? नाही, परफॉर्मन्स होणार नाही ना. फॉर एक्झाम्पल डी कमांड आहे आणि डी कमांडच्या जागेवर तू पी कमांड यूज केली, तर पी नावाची कमांडच अवेलेबल नाही ना. बट जर वाय वाय यूज केलं तर कॉपी होणारच आहे ना. सो रॉंग केल्यानंतर डेटा जात नाही. ओके. बट याच्यासाठी एक ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल सी, इसके अंदर मैं परफॉर्म होता हूँ, इंसर्ट करता हूँ एंड आल्सो कुछ टाइप करता हूँ. नाउ अभी ये जो मैंने टाइप किया है ना, ये गलती से टाइप किया है. assume that this one is a command. Okay, now I don't want to save this, so what should I do? Escape button, quit. I don't want to save बिकॉज मैंने गलती से किया है, मेरा डेटा उड़ गया है, आई वांट टू यूज प्रीवियस फाइल. तो एक तो लिनक्स का एक टर्मिनोलॉजी होता है कि इफ यू वांट टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन वी नीड टू टेक अ बैकअप. कॉन्फ़िगरेशन फाइल कुछ भी करना है तो वी नीड टू टेक अ बैकअप ऑफ फर्स्ट. पहले बैकअप लेना पड़ता है, आफ्टर दैट वी नीड टू एडिट. बट स्टिल गलती से मुझे ये हो गया है, अभी मुझे सेव नहीं करना है. डू नॉट यूज राइट. राइट मत यूज करो, क्विट करो. ये क्विट करने के बाद में यहाँ क्या, सिंस लास्ट चेंज. ओके, here use quit forcefully. now check that file, जो लास्ट कंटेंट था वही दिखाई देगा आपको, न्यू कंटेंट ऐड ही नहीं होगा उसमें. सो रॉन्ग कमांड मतलब अगर रॉन्ग है तो ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं होगा, तो डेटा लॉस होने के चांसेस नहीं है. बट स्टिल कुछ ऐड किया है और आई थिंक इट इज रॉन्ग और ऐसा हो रहा है कि मैंने बैकअप ही नहीं लिया, सो जस्ट यूज क्विट बटन, आप बाहर आ जाओगे उसके अंदर से. एंड जो लास्ट चेंजेस थे वही रहेंगे, अपडेटेड चेंजेस उसके अंदर नहीं आएंगे. ओके. श्रुति, इज इट ओके? Abdul, do you have any query? No, sir. Okay. Asna, query नो है? सर. Okay. नो वो सर. No, sir. ये रहा है तुझं. अमीरुल्लाह खान, दिव्या, येस सर. क्युरी आहे काय तुझ्याकडे? समजलं तुला वे एडिटर? नाही सर. म्हणजे समजलं नाही का क्युरी नाहीये? आजचं नाही समजलं. आजचं नाही म्हणजे एडिटर नाही समजलं तुला? नाही. मग मी विचारतोय ना, काय नाही समजलं? सी, इफ यू वांट टू कॉन्फ़िगर एनी फाइल, कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है? सी, मैं आपको दिखाता हूँ. फॉर एग्जांपल vi/etc. प्रीवियस लेक्चर अटेंड केलेस का बाळा तू? fs tab, enter that. सी, दिस वन इज अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल. ये आपकी मेन डिस्क होती है. ओके. दिस इज अ यूनिक आईडी. ये जो दिख रहा है आपको, ये यूनिक आईडी है. आपकी डिस्क ये पार्टीशन पे माउंट है. ये आपका फाइल फॉर्मेट है, ये पूरा दिखा है हमने. ओके. एंड अदर इंफॉर्मेशन. अभी ये एडिटर मेरे पास अवेलेबल है. ओके. नाउ आई वांट टू कॉपी दिस. ये जो मुझे कॉपी, ये जो डिस्क है ये मुझे कॉपी करना है, ये लाइन मुझे कॉपी करना है. एंड आई एम इनटू configuration file. Okay, mainly vi editor is used to configure the file. Here what should I do? I will use yy. Right now it is a copied. Okay, and here I will use p for paste. See, आपको बॉटम में ये फाइल एडिशनल कॉपी करके मिल गई. तो ये कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए नाउ आई वांट टू यूज dd, डिलीट हो गई. तो वही बताया, इंसर्ट मेड ऑन करो, ये बॉटम में आप एडिट कर सकते हो.
इंसर्ट मोड ऑन हो गया आपका। यहाँ मैं ऐड कर सकता हूँ हाय हेलो, बट इट इज एन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, डू नॉट मेक एनी चेंजेस। ओके, आपको इसलिए बताया है कि इट इज जस्ट यूज व्हाट इट इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन। ये ऑपरेशन कॉन्फ़िगर फाइल होने करने के लिए ही यूज किया जाता है। इसके अंदर कॉपी कैसे करना है, दीज आर द कमांड्स, ये आपके पास कमांड्स है। See, at the bottom you have commands. How will you use that file? Vi file name. If file is already existed, then file will be open in directly edit mode. If file is not existed, then new file will be created and that file open in the right mode. कौन से ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं? आई से इंसर्ट, एस्केप से बाहर आना, यू से अंडू, डी डी प्रेस करने के बाद में डिलीट हो जाएगी लाइन, 3dd करने के बाद में 3 लाइन्स डिलीट हो जाएगी, 5dd करने के बाद में 5 लाइन्स डिलीट हो जाएगी, वाई वाई से कॉपी होगा, 3 वाई वाई से 3 लाइन कॉपी होगी, 10 वाई वाई से 10 कॉपी लाइन होगी, पी से पेस्ट होगा, डब्ल्यू से राइट होगा, क्यू से क्विट होगा, डब्ल्यू क्यू से राइट एंड क्विट होगा, डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेमेटरी मार्क से राइट एंड क्विट फोर्सफुली होगा। ओके, तो सो यू विल गेट, बट आपने प्रीवियस लेक्चर किए कि नहीं नहीं पता है, सो मे बी आपको बेसिक आइडिया नहीं आ रहा है। जस्ट ये आप वीडियो रिवाइज कर लो, अगर नहीं आता है देन आप मुझे कॉल कर सकते हो, उस पर क्वेश्चन पूछो, या वी कैन यू कैन मेक अ व्हाट्सएप आल्सो। ओके, सो जस्ट डू द प्रैक्टिस। ओके, नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज cron tab। cron tab, ओके। अगर आपको फ्यूचर जॉब्स बनाना है, फ्यूचर वर्क क्रिएट करना है, देन वी नीड टू यूज cron tab। ओके, शेड्यूलिंग करना है फ्यूचर जॉब्स का, ओके, बैकग्राउंड में करना है, देन वी विल यूज cron tab। हाउ, व्हाट इज अ cron tab? वी हैव अ मैन कमांड cron tab। Say cron tab maintains the cron tab files for individual users. Okay, so maximally it is used to run the future jobs and it will work on the background. Foreground में work नहीं करता है, but ये background में work करता है। Background में कैसे? For example, right now there is a time called as 8:45 a.m. Okay, I want to create one folder on 9 a.m. and that will be work on the background. Okay, so I will write one cron tab, I will create one cron tab, and that cron tab automatically executes, automatically creates folder at exact 9 a.m. okay, in the background, and we will get output exactly on 9 a.m. जो आपने टाइम स्पेसिफाई किया है उस पे ही वर्क होता है। सेम थिंग, वी विल लर्न सम थ्योरेटिकल पार्ट एंड आफ्टर दैट वी विल डू द प्रैक्टिकल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है, बिंग एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, कैसे? फॉर एग्जांपल, आप एक रेपुटेड कंपनी के सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं एंड न्यू एम्प्लॉय आपका ज्वाइन हो चुका है। ओके, एंड आफ्टर दैट फ्यू मंथ्स के बाद में वो उसको रिलीव करने वाले हैं, सो ऑटोमेटिकली आप cron टैब सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट cron टैब। वो पर्टिकुलर जिस दिन रिलीव होने वाले हैं उसका अकाउंट ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो सकता है। although also we can take backup regularly by using cron tab। आप cron tab लिख लो, आप बैकअप क्रिएट कर सकते हैं डेली, मंथली, वीकली, आप सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं और ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, बट दैट ऑपरेशंस और विल बी दैट ऑपरेशन विल बी एग्जीक्यूटेड इन द बैकग्राउंड। फोरग्राउंड में ये ऑपरेशन वर्क नहीं होते बिकॉज cron tab is a daemon and daemon always work on the backside background of system। Okay, so we'll learn some theoretical part। Yeah, this one is a cron tab। In this section we learn how we can schedule and run the task in the background automatically at the regular intervals using cron tab। Okay, we can schedule run the task। अभी ये cron task से क्या कर सकते हैं हम? टास्क एंड शेड्यूल एंड टास्क, रन द टास्क इन द बैकग्राउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड विच इज ऑटोमेटिकली, मैन्युअली नहीं। जैसे मुझे आई वांट टू क्रिएट वन फोल्डर, वी नीड टू एंटर sudo
mkdir and name of the file. Suppose I want to create a file, sudo touch and file name. Suppose I want to create a user, sudo add user and name of the user. ऐसे करना पड़ता है. ओके, ऑटोमेटिकली क्रिएट करने के लिए, बैकग्राउंड में रन करने के लिए हम cron टैब यूज कर सकते हैं. क्या क्या कर सकता है cron टैब? cron टैब, or you can automate the process like backup, schedules updates, synchronization of file, creating users and many more, creating folders. अब बहुत सारे टास्क कर सकते हो. द मेन पर्पज इज यूज फॉर द टेक बैकअप, शेड्यूल द अपडेट्स. अब एज्यूम दैट मुझे क्या करना है, डेली एट 5 PM डेली अपडेट करना है मेरा सिस्टम, और यू कैन से आई नीड टू टेक अ बैकअप ऑफ IMP डेटा. मुझे डेली 5 PM को और रात को 12 AM को डेली बैकअप लेना है. सो आपको बैकअप लेना है तो रात के 12 बजे तक जगने की जरूरत है क्या? नहीं है. लाइव सिस्टम पे बैठने की जरूरत है क्या? नहीं. Just we need to set a cron tab. By using that, we can take regularly backup of regular folder. We need to specify that. अपडेट करना है, शेड्यूल अपडेट करना है, रात के 2 बजे मुझे अपडेट करना है, तो मुझे जगने की जरूरत है क्या? नहीं. एट दैट टाइम cron tab automatically at the 2 AM बैकग्राउंड प्रोसेस ऑन रहेगा, सिस्टम ऑन रहेगा, automatically we can schedule the updates. Okay, so such a type of scheduling task, future jobs we can perform by using a cron tab. उसके लिए cron tab हम यूज कर सकते हैं. थर्ड, cron is a daemon to run the scheduled task. daemon क्या होता है? It is a one process which will be executed on the background. ये foreground पे नहीं दिखाई देती. Second, cron wakeups every minute and checks scheduled task in cron. अभी क्रॉन जो फाइल होता है ना, ये हर मिनट के बाद में चेक करता है कि मुझे कुछ टास्क है क्या. राइट नाउ देयर इज अ टाइम ऑफ 8:49. जैसे भी 50 आता है तो 50 आने से पहले ये क्या कर लेगा, चेक कर लेगा कि मुझे नेक्स्ट मिनट के लिए कुछ टास्क है क्या. होगा तो एग्जीक्यूट कर लेगा, बट इट विल चेक एवरी 1 मिनट. ओके, इसीलिए आप 1 मिनट का भी टास्क रहेगा, 2 मिनट्स का भी टास्क रहेगा, वॉट एवर इट में भी, ये हर टाइम क्या करेगा, चेक ही करेगा. ओके, हर टाइम क्या करेगा, चेक करेगा. cron फाइल कंसिस्ट ऑफ कमांड पर लाइन हैविंग 6 फील्ड्स. इसके अंदर cron टैब सेट करना है तो उसके 6 फील्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने ये स्पेसिफाई करके रखे. फर्स्ट फील्ड, cron टैब की जो फर्स्ट फील्ड होती है ये मिनट्स होती है. सो उस मिनट्स के अंदर आप यूज कर सकते हैं फ्रॉम 0 to 15. वी ऑल नो दैट इन 1 मिनट, इन द 1 hour वी हैव 60 मिनट्स. ओके, अब ये स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो किया है तो एंडेड क्या होगा, n-1, दैट इज 59. सो वी कैन यूज इन बिटवीन 0 to 59. सेकेंड इंपॉर्टेंट टैब होता है आपका अवर्स. अवर्स के अंदर वी कैन यूज 24 आवर्स फ्रॉम 0 to 23. वी कैनॉट एबल टू यूज 24 because starting number is 0. Again same formula, n is equals to n-1. So last आएगा 23. So we can use hours. First we will use minutes, second we will use hours. Third, day of month. ओके आपके पास में मंथ कौन सा चालू है, मंथ के अंदर डे कौन सा चालू है. सो वी हैव 30 days month, 31 days month, 28 days month, 29 days month. सो अकॉर्डिंग टू आपको पता होना चाहिए कि हम कौन से मंथ में काम करें. सो क्लिक ऑन दैट डेट फोल्डर. ये आपको दिखाएगा कि नवंबर के अंदर 30 डेज होते हैं. ओके, सो इसके हिसाब से आप क्या करते हैं, जॉब शेड्यूल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस वे. इसके हिसाब से आप जॉब शेड्यूल कर सकते हैं. ओके, सो थर्ड इज अ डे ऑफ मंथ. वी कैन यूज फ्रॉम 1 to 39. फोर्थ वन, मंथ ऑफ ईयर होल्ड्स द वैल्यू बिटवीन 1 to 12 और Jan to December. इसके अंदर आप 1 to 12 भी डाल सकते हैं या वी कैन ऑल्सो यूज Jan to December. जैसे आप नवंबर चालू है, सो आई कैन यूज NOV, November. So you can use November, we can use 11. Okay, fourth number is a month of year. Fifth one is a day of week. Day of week क्या होता है, जो वीक होता है उसके अंदर का स्टार्टिंग डे होता है आपका संडे एंड विल बी ट्रीटेड एज न्यूमेरिक वैल्यू एज अ 0. वी कैन यूज आल्सो SUN. एक तो हम SUN भी यूज कर सकते हैं, आइदर वी कैन यूज 0, आइदर आई कैन यूज MON
I can use one. I can use TUE Tuesday. दूसरा ये मैं TUE भी यूज कर सकते हैं या मैं टू भी यूज कर सकते हो. दैट मीन्स 0 to 6, दैट मीन्स 7 days. ओके. 0 स्टार्टिंग जो होता है वो संडे के लिए होता है, 1 जो होता है वो मंडे के लिए होता है. एंड आफ्टर दैट वी नीड टू यूज कमांड विच ऑपरेशन यू नीड टू फाइंड. ओके, करना है. सो जैसे हम बेसिक ऑपरेशन क्रिएट करेंगे, यूजर क्रिएट करना है एंड डायरेक्टरी क्रिएट करना है. ओके, तो फॉर एग्जांपल आपको उसकी कमांड लिखनी नहीं पड़ेगी. बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि कमांड हम डायरेक्टली नहीं दे सकते. फॉर एग्जांपल आई वांट टू क्रिएट अ फोल्डर, सो mkdir नहीं दे सकता, उसका सोर्स फाइल मुझे चाहिए. एंड वी ऑलरेडी सेंड टू फाइंड आउट द सोर्स फाइल वी विल यूज विच कमांड. सोर्स फाइल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे, विच कमांड. सो विच, और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसका देना है, और नीचे जो आउटपुट आता है वी नीड टू कॉपी एंड पेस्ट इन द 6th number सेक्शन. ओके, सो हियर आई हैव एग्जांपल. जैसे मिनट्स, ओके 20 minutes, आवर 8 o'clock, डे 23, मंथ जैन, डे ऑफ वीक संडे, एंड कमांड इज यूजर ऐड. ओके, यहाँ मैंने यूजर ऐड नाम की कमांड दी है. ओनली यूजर ऐड नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, टर्मिनल पे जाना है एंड सपोज आई वांट टू परफॉर्म mkdir ऑपरेशन डायरेक्टली करना है. देन आई विल यूज विच mkdir. तो इसका सोर्स फाइल फाइंड आउट होगा. तो ये वी नीड टू कॉपी दिस कमांड, ये हमें कॉपी करना है. जैसे मुझे यूजर ऐड करना है, हियर आई विल यूज विच यूजर ऐड. Here we cannot able to use add user. Why? Just we need to provide the information like आपको पासवर्ड देना पड़ता है, बाकी की इंफॉर्मेशन ऐड करना है. तो ये बैकग्राउंड में नहीं होता है बिकॉज वो इनपुट लेगा क्या, नहीं लेगा, ऐड से इनपुट नहीं लेता है. सो यूजर ऐड करना है, ग्रुप ऐड करना है, तो आपको यूजर ऐड, ग्रुप ऐड यही कमांड यूज करना पड़ता है. तो यू नीड टू कॉपी दैट कंटेंट और आपको यहाँ पेस्ट करने. सो लाइक दैट ये आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं cron टैब में. अब cron टैब में फर्स्ट लिस्ट द cron टैब एंट्रीज. cron टैब लिस्ट करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको cron टैब लिखना है, यहाँ cron टैब एंड -l लिखना है. सो ये क्या करेगा, cron टैब जो है ये आपका लिस्ट करेगा. ये आई थिंक विजिबल नहीं हो पा रहा है आपको, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ. Now, okay. Done. So see, cron tab -l. -l से क्या करेगा, ये लिस्ट आउट करेगा कि आपके पास कौन से cron tabs अवेलेबल है. सी यहाँ भी आपको बॉटम में दिखाई देगा. फर्स्ट वन इज ए मिनट, सेकंड वन इज आवर. याद रखने की जरूरत नहीं. डे ऑफ मंथ, कौन सा डे है अमोंग 0 to 30, 31 जो भी है आपका वो देना है आपको. मंथ कौन सा है आपका, फ्रॉम 1 to 12. एंड यहाँ आपको डे ऑफ वीक कौन सा है आपका, जो आपको डे ऑफ वीक होगा वो आ जाएगा. एंड आफ्टर दैट वी नीड टू ऐड अ कमांड. ओके, सो यहाँ मैंने नोट्स दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी विल डू वन टास्क टू क्रिएट अ फाइल. एक फाइल क्रिएट करके हम देखते हैं. ओके, हम डेस्कटॉप के अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे, उसका नाम हम देते हैं. चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल sudo cron tab -e to edit. Okay, -l to list, -e to edit. We need to enter the password. After that, here I will use comment hash and you will do fresh. Right now, which operation we need to create, we need to create which operation, we need to create one file. Okay, so file create करना है. For the file create we will use which command, which file, which touch.
हमें फाइल क्रिएट करना है तो टच देखना है, टच कहाँ से आता है, टच का सोर्स फाइल क्या है, /usr/bin/touch, copy that text, copy, now sudo cron tab -e to edit, bottom में जाओ, okay, now first of all minutes, what will the minutes, 57, हमें future job करना है, so here we will use 0 minute, time 9 hours, डेट क्या है आज, डेट है 26, राइट, 26, मंथ कौन सा है 11, डे ऑफ वीक कौन सा है आज का, संडे 0, मंडे 1, वेनेसडे 3, and this one is a 4, Thursday 04. So here I will add 04. Source command, this one is a command source, and he will press file name as xyz cron. ओके, आफ्टर दैट मैं नैनो यूज कर रहा हूँ, आपको कोलन करके राइट क्विट करना है, कंट्रोल ओ, एंटर, कंट्रोल एक्स, मैं नैनो यूज कर रहा हूँ इसके वाले। सो आफ्टर दैट रिस्टार्ट करना है आपको सर्विस क्रॉन की, sudo सर्विस, नेम ऑफ सर्विस नेम इज cron एंड रिस्टार्ट, दैट्स इट। इससे आपको मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है, इससे आपको इजीली समझ में आएगा, और वी विल डिस्कस, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट वन इम्पोर्टेंट थिंग, मैंने पाथ क्या दिया है फोल्डर का, here we'll do 1 minute, and that file will be created /home/working directory /desktop, इस पे क्रिएट करना है, ओके, कंट्रोल ओ, एंटर, कंट्रोल एक्स, अगेन रिस्टार्ट। जब भी आप क्रॉन टैब एडिट करते हो तो रिस्टार्ट करना मैंडेटरी होता है, ओके। ये सर्विस चालू है क्या नहीं, इसके लिए आपको देखना है तो आप स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं। सो इसके अंदर ये क्रॉन सर्विस एक्टिव है, ये कभी भी एक्टिव होना चाहिए तो ही आपके टास्क, फ्यूचर टास्क बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ओके। नाउ विल वेट फॉर 9:01, हम 9:01 के लिए वेट करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम डेस्कटॉप में जाएंगे, डेस्कटॉप, हियर इज ls कमांड, we will wait for 1 minute. Right now we don't have a folder, we don't have a file as xyz cron. टास्क वही है, अभी कभी कभी आपका सिस्टम अपडेट नहीं होगा तो बैकग्राउंड प्रोसेस वर्क नहीं होगा, तो दैट्स वाई आपको सिस्टम को पहले अपडेट करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ अपडेट करने के लिए, जस्ट वी नीड टू यूज sudo apt update and dist and dist update, dist नहीं हो पा रहा, ओके, जस्ट डू वन बाय वन, y ये करो पहले, और दूसरा sudo apt dist -update, dist -update, ये -y, okay, we need to execute these two commands, okay, now we'll use ls command, see here we don't have xyz cron, यहाँ आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, but अब right now xyz cron file automatically created at 9:01 am, okay, so ऐसे future jobs आप create कर सकते हैं। we'll do one more time, we'll create one user, so यहाँ हम user create करेंगे, which user add, we cannot able to use add user, we need to use user add, because add user will take some input from the user add will command will not take input, okay, will not accept the input, so ये कमांड मैंने यहाँ से कॉपी किया, राइट क्लिक, कॉपी, नाउ
sudo cron tab -e से go to that option. Okay, here make changes and the name of user हम वही रखते हैं xyz cron name of user. Time we need to modify first here minute अभी 3 हो रहा है तो 5 minutes का करते हैं हम. टाइम 9 ही है 26 डेट है 11 है और वे डे ऑफ वीक 4 है. हियर आल्सो यूज THU. आप THU भी यूज कर सकते हैं. So now save that and restart the service. Sudo service, name of service is a cron and restart. जैसे भी आप cron इंस्टॉल करते हो तो यहाँ आपको मैसेज आता है इंस्टॉलिंग न्यू cron जॉब cron टैब. और एट दैट टाइम क्या होता है कि आपकी सर्विस आपको रिस्टार्ट करना मैंडेटरी होता है एवरी टाइम. ओके, जैसे भी आप रिस्टार्ट करते हो तो न्यू cron एंट्री विल बी एडेड इनटू सिस्टम. न्यू cron जो एंट्री होती है वो सिस्टम के अंदर क्या होती है ऐड हो जाती है. सो फॉर दैट रीजन इट इज मैंडेटरी टू रिस्टार्ट द सर्विस. विल वेट फॉर 1 minute. Hello, sir. -n1/etc. Just wait for a few minutes for passwd and the last username is a cron job user. We'll wait for 1 minute and after that we will get the output. After that I will queries. Okay, just wait for 1 minute. We'll get output. We all know that the meaning of tell. Okay, it will print last line of etc/passwd file. Now work is done. See, लास्ट फाइल कौन सा था हमारा cron जॉब था लास्ट यूजर. बट आफ्टर 9 PM लास्ट यूजर कौन सा ऐड हो गया हमारा xyz cron. मीन्स ऑपरेशन इज सक्सेसफुल. ओके, सो हियर आई विल प्रेस लास्ट 2 लाइंस. तो लास्ट 2 में cron के बाद में ही हमारा xyz है. सो बाय यूजिंग दैट वी कैन परफॉर्म सम ऑपरेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट करना है तो -l यूज करना है. आपको cron टैब एंट्रीज एडिट करना है तो -e यूज करना है. ये डॉक्यूमेंट में मैंने पूरा दिया है. लिस्ट शेड्यूल cron जॉब करना है तो यूजर वाइज करना है तो cron टैब -u यूजर का नाम स्पेसिफाई करना है और उसकी लिस्ट देखना है. अभी सी एडमिनिस्ट्रेटर तो एक सिंगल यूजर नहीं होता है, उसके अंदर एक मेन ऑथराइज यूजर होता है और बाकी सभी यूजर होते हैं. तो आपको आपके जितने भी यूजर है उनके cron टैब चेक करना होगा. तो आपको जस्ट cron टैब -u और आपके यूजर का नाम देना है. आफ्टर दैट -el करना है तो उसके पूरे के पूरे cron टैब आपको लिस्ट आउट हो गए. cron टैब रिमूव करना है तो -r यूज करना है. जो भी cron टैब्स है वो पूरे के पूरे रिमूव हो जाएंगे. जॉब शेड्यूल करना है तो विच फर्स्ट ऑफ हम अब यहाँ मैंने टास्क 2 दिए. शेड्यूल cron जॉब क्रिएट 1 डायरेक्टरी जो आपको मैंने करके दिखाया है. विच mkdir से आपको पहले फाइंड करना है. आफ्टर दैट आपको cron टैब ई पे जाना है. उसके बाद में बॉटम ये लाइन ऐड करना है आपको फर्स्ट आवर, उसके बाद में सॉरी फर्स्ट मिनट, फिर उसके बाद में आवर, उसके बाद में डेट, उसके बाद में मंथ, उसके बाद में डे ऑफ वीक, कमांड और उसका पाथ कहाँ क्रिएट करना है. उसके बाद में आपको मैसेज आ जाएगा cron tab installing new cron tab. After that we need to restart the service. Sudo service cron restart and just wait for the time. जितना टाइम दिया उसके लिए वेट करो. After that you will get यहाँ here I'm creating a cron job file. So we'll get output C cron job dir. यहाँ आपको आउटपुट आ जाएगा. सिमिलरली वैसे मैंने यूजर का भी बनाया है. शेड्यूल cron job create one user. सो डेस्कटॉप विच ऐड यूजर नहीं चलेगा, यूजर ऐड करना पड़ेगा यहाँ. सो उसका पाथ आएगा डेस्कटॉप cron टैब ई और उसके बाद में 17 जो भी टाइम है उसका पाथ देना है आपको.
and we need to specify installing that sudo service cron job restart and particular आपको users create होगा, इसलिए tel -1 etc passwd previous user 10 times a था और उसके आफ्टर टास्क कंप्लीशन आपका न्यू यूजर यहाँ ऐड हो गया cron job user. So likewise we can create future jobs. अब मैंने ये दो ही करके दिखाया आपको, कौन सा, either directory and user. So आप बाकी के ऑपरेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे cp कमांड है, आपको एक फोल्डर के बैकअप रेगुलरली डे बाय डे लेने हैं या मिनट बाय मिनट लेने हैं, एवरी मिनट वी नीड टू टेक अ बैकअप. सो आप क्रिएट कर सकते हो cp, आपको फोल्डर का पाथ देना है, cp कहाँ से बिलोंग करता है, आपको फोल्डर का पाथ देना है, आप कहाँ कॉपी करना है, जस्ट वी नीड टू यूज एस्टेरिस्क सिंबल इंस्टेड ऑफ मिनट्स. हर 5 मिनट में करना है तो 5 मिनट बाद करो, 10 मिनट्स के बाद में करना है तो 10 मिनट्स के बाद. सो आपके लिए ये टास्क है कि आपको एक cron tab बनाना है. दैट cron tab will take a backup of a folder for every 5 minutes. 5 मिनट्स के बाद में चाहिए. तो फॉर दैट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, 5 मिनट बाद मुझे बैकअप लेना है, तो अब कोई बता सकता है हमारे पास कमांड कौन सी है, cp है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम टर्मिनल पे जाएंगे और क्या करेंगे, विच cp, क्या करेंगे, विच cp, कहाँ से cp बिलोंग होता है उसका मेंशन करेंगे. सो बिन से होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कमांड में लिखूंगा टाइम, एवरी 5 मिनट चाहिए इसलिए 5 मिनट. ओके, एवरी चाहिए मतलब डे का, डेली चाहिए. ओके, 24 आवर्स में से एवरी चाहिए. सो हियर आई विल यूज एस्टेरिस्क साइन. यहाँ मैं टाइम नहीं दूंगा क्योंकि मुझे हर घंटे का चाहिए, एवरी 5 मिनट्स. सो आवर यहाँ मैं ऑल करूंगा, मतलब 24 आवर में जब जब आवरली होगा तब मुझे चाहिए. डे, डेली चाहिए क्या, या आपको पर्टिकुलर डेज के लिए चाहिए, नहीं मुझे एवरी 30 डेज का चाहिए. ओके, 31 डेज का चाहिए. मंथ, एक ही मंथ का चाहिए क्या मुझे, नहीं मुझे ईयर का चाहिए. सो हियर आई विल अगेन प्रेस स्टार. वीक ऑफ डे, पर्टिकुलर वीक ऑफ डे का चाहिए क्या, नहीं मुझे ऑल डे का चाहिए. उसके बाद में आप ये कमांड कॉपी करो, या ये 5 हो गए. उसके बाद में स्लैश बिन स्लैश cp. ओके, स्लैश बिन स्लैश cp कहाँ से आपको कॉपी करना है, ये तो की कमांड है आपकी, ये कहाँ से कॉपी करना है आपको, वी नीड टू स्पेसिफाई द पाथ. स्लैश होम स्लैश अरविंद, ये जो मेरी वर्किंग डायरेक्टरी ये कॉपी कर लो पूरी की पूरी. ओके, समझ आ रहा है, लाइक दैट. जस्ट वी नीड टू इमेजिन, आपको इमेजिन करना है कि आपको टास्क कौन से करना है, और अकॉर्डिंग टू दैट वी नीड टू वर्क. सो नाउ अगर आपकी कुछ क्यूरीज हैं रिगार्डिंग cron tab देन यू कैन आस्क. ओम काय म्हणत होता. हॅलो सर. सर क्रॉन टॅबला 30 म्हणजे काय म्हणतात 24 आवर टाइम यूज होतो का? काय म्हटलं, 24 आवर टाइम यूज होतो. 24 आवर टाइमिंग है त्याचा, 12 आवर्स पैटर्न नहीं है, 24 है. फॉर एग्जाम्पल रात के 12 बजे हो गए तो इट विल बी ट्रीट एज 0. अभी दिन के 6 बजे है, मतलब आफ्टरनून के 6 बजे है, देन इट विल ट्रीट एज 18. 3 बजे है 15, 1 बजे है 13, लाइक दैट. सो इट विल कंसिडर 24 आवर क्लॉक. यहाँ दिया है ना, थे सी आवर होल्ड वैल्यूज 0, 35, सॉरी 23 नोट्स में दिया है ना. ओके, सर बोलो. कैन वी परफॉर्म मल्टीपल टास्क इन वन शेड्यूल? यस, वी कैन क्रिएट मल्टीपल टास्क. आप कितने भी cron tab सेट कर सकते हैं, जस्ट वी नीड टू सेपरेट बाय लाइन. आपको क्या करना पड़ता है, बाय लाइन से सेपरेट करना पड़ता है, दैट्स इट. यहाँ आप क्रिएट कर सकते हैं.
यहाँ आप नीचे ऐड कर सकते हैं कितने भी लाइंस, नो इश्यू। अब ऐसा नहीं है कि एक टास्क एट ए टाइम कर सकते हैं, नो, जस्ट वी नीड टू प्रोवाइड द टास्क। आपको वो फॉर्मेट से प्रोवाइड करना है एंड सर्विस रिस्टार्ट करना है। जब भी क्रोम टैब सेट करते हो तो सर्विस मैंडेटरी रिस्टार्ट करना है, दैट्स इट। लिमिटेशन कुछ भी नहीं है इसको। ओके पण सर तसं नाही, म्हणजे एका क्रॉन टॅब मी समजा इनिशिएट केला त्याच्यात मला 2 टास्क परफॉर्म करायचे ऍट अ सेम टाइम. हो, मग तेच म्हटलं ना, ऍट अ टाइम सेम टाइम तुम्ही 2 टास्क करू शकता। एकदाच मला युजर पण बनवायचं आणि एकदाच मला डिरेक्टरी पण बनवायचं। सी करून तर दाखव। दोघांचा टाइम सेम ठेवावा लागेल बस. हो, करून दाखवतो। एक मिनिट, जस्ट 1 मिनिट, 1 मिनिट। या क्या टास्क करना है हमें? सेम टाइम पे करना है। अभी राइट नाउ कितने बज रहे हैं? 15 को करते हैं। यूजर ऐड करो, एबीसी क्रॉन। सेम टास्क पे क्या करना है मुझे? 15 9 26 11 0 फ्लोर /usr /bin /mkdir/home /working directory /desktop/abc cron। ओके, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल से sudo service cron restart। ओके, कितना दिया था टाइम हमने? 15 दिला होता सर, 15 झाला. सर 9:15. रिस्टार्ट करायच्या अगोदर 15 झाला का नंतर झालं? विल चेक। या रिस्टार्ट करते समय ही 15 हो गया, सो इसकी वजह से वर्क नहीं हुआ। विल चेक टेल कमांड आल्सो, टेल -etc/passwd-n1 abc कौन एग्जीक्यूट हो गया टास्क, बट क्या हुआ कि शायद से विच mkdir ये पाथ गलत हो गया मेरे से। यूएसआर डाल दिया था मैंने बिन फोल्डर को। sudo cron tab -e will perform one more time। एक बार फिर कर सकते हैं, दिखाई दे रहा है यहाँ। यहाँ सोर्स पाथ गलत डाला था मैंने। Here I will use this। Now here I will use pqr cron pqr cron, use timing as 17, here I will use 18। control enter, control x, restart the service। Yeah, done। now ls करना है and tell -n1/etc passwd। yeah, just wait for few minutes। 18 हो गया है। अभी टाइम होने के बाद में आपके दोनों के दोनों टास्क साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो गया। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 2 1. क्या चालू है? माइक अनम्यूट हुआ क्या गलती से?
Done. First of all, ls. Still we have a problem. Okay, user create हो गया क्या? यूजर क्रिएट परमिशन फोल्डर के लिए प्रॉब्लम आ रहा है. Let's pqr done. See, pqr cron ये फोल्डर भी क्रिएट हो गया, यूजर भी क्रिएट हो गया. ओके, so simultaneously we can perform two tasks at a time. Om. Yes, sir. Yeah, done. So this is overall about cron. क्या है क्वेश्चन होना चाहिए? सर सर हे क्रॉन टॅबचं जे फंक्शन आहे ते फक्त म्हणजे डेस्कटॉपवरच असतं का किंवा आपले जे डिश टीव्हीचे सेट टॉप बॉक्स असतं त्याच्यामध्ये असतं का? असतात ते वेगवेगळे जे ऑप्शन आहेत ना ते दिलेले आहेत त्याच्यामध्ये आपण क्रॉन जॉब मध्ये सी ही जी डिश टीव्ही वगैरे जे टीव्ही म्हणतो हे पण आता ऑपरेटिंग सिस्टमवरच वर्क होतात मॅक्सिमम. ओके, अँड्रॉइडवर येस होतात, सर. लिनक्सवर होतात. तर ह्याच्यामध्ये शेड्युलिंग असतं क्रॉन जॉबचं. जसं मला पर्टिक्युलर 2 PM एक सिरियल आहे किंवा एक मूवी आहे आणि ती मला नंतर बघायची. राईट नाऊ आय एम बिझी, बट जस्ट रेकॉर्ड दॅट शो. सिरियल असेल किंवा मग मूवी असेल, वॉटर इट मे बी, जस्ट रेकॉर्ड इट आणि आफ्टर दॅट आय विल वॉच. जर असं आपण सेट करून ठेवलं दॅट मीन्स तो पर्टिक्युलर जो शो असेल तो तुमच्या रॅमवर जो जो स्टोरेज स्पेस आहे, सॉरी रॅम नाही, स्टोरेज स्पेस आहे, त्याच्यामध्ये तो रेकॉर्ड करून ठेवतो आणि आफ्टर नंतर आपण बघू शकतो. दॅट मीन्स वॉट, हा फ्युचर जॉबच झालेला आहे. सो डिपेंडिंग आहे. ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये पण असतं, दुसऱ्या ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये शेड्युलिंगचे टास्कचे ऑपरेशन्स असतात. ओके, क्रॉन जॉब म्हणूनच. पर ये मैक्सिमम जागेवर नहीं है. अपन बीइंग अ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर ये कब यूज होता है? बीइंग अ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर आपको जब रेगुलरली बैकअप लेना है, ओके, एवरी 1 डे बैकअप लेना है, तो आप कंप्यूटर ऑन करो, जाओ, बैठो, फिर बैकअप लो, फिर बाहर जाओ. ऐसा करने से अच्छा है आप शेड्यूल कर दो. कितने दिन में चाहिए, वीकली चाहिए, डेली चाहिए, मंथली चाहिए, आप जस्ट शेड्यूल कर दो. भूल गए तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. एक बार आपने क्रॉन टैब सेट कर दिया ना तो आपको कुछ भी जरूरत नहीं होता है. ऑटोमेटिकली सिस्टम विल एग्जीक्यूट दैट टास्क इन बैकग्राउंड. सर येस सर. सर अगर हमने मतलब ऐसा टाइम सेट किया उस टाइम पे सिस्टम ऑफ है तो सर वो क्रॉन टैब क्या करेगा फिर सर? सिस्टम ऑफ है एट दैट केस से डीमन होता है. डीमन के लिए रन होने के लिए आपको सिस्टम ऑन करना जरूरी है, तो एग्जीक्यूट नहीं होगा. अभी ये कंपनी में कैसे होता है मालूम है क्या? जैसे आपका टाइम होता है, टाइम ऑटोमेटिकली वर्क कैसे करता है? बाय यूजिंग सीएमओएस बैटरी. ओके, तो ये मैंने कभी किया नहीं है बट आई थिंक सो, मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए रन बैकग्राउंड में. ओके, जैसे सिस्टम्स होते हैं कंपनी के, तो ये कंपनी के सिस्टम्स ऑन ही रहते हैं 365 डेज मल्टीप्लाइड बाय जितने भी ईयर्स है. ये एक बार ऑन हो गया सिस्टम तो ऑन ही रहता है. ओके, सो मे भी पता नहीं है, जस्ट डू वन प्रैक्टिकल, एक बार करके देखो और आपको पता चलेगा. मैंने कभी शट डाउन करके ऐसा परफॉर्म नहीं किया है फ्रैंकली. सो एक तो आप परफॉर्म करो, नहीं तो मैं परफॉर्म करके बताता हूँ आपको. बट मेरे हिसाब ओके से सर. नहीं. हाँ, डोंट नो अबाउट दैट, कभी किया नहीं है. नेक्स्ट, एनीवन एल्स? ओके, डू वन थिंग. अब आपको क्या करना है कि आपको 3 यूजर्स ऐड करने हैं एंड 2 फाइल्स क्रिएट करने हैं एंड 2 डायरेक्टरी करने हैं. ओके, अभी ये टास्क क्रिएट करके मुझे अभी व्हाट्सएप के ग्रुप को सेंड करना है. 3 यूजर्स, 2 डायरेक्टरी एंड 2 फाइल्स. तब तक के लिए आप वेट करो. ओके, एवरीवन